چیل چاچی کی دکان پر بیٹھا بھورا کوا پاس سے آتے جاتے پکشیوں کو دیکھ رہا تھا اور مکھیاں مار رہا تھا۔ وہ اٹھتا ہے اور دکان کے اندر جا کر کریم لگانے لگتا ہے۔ کریم لگا کر وہ پھر سے آ کر دکان پر بیٹھ جاتا ہے۔ اے اوپر والے، اب تو کسی گراہک کو بھیج دو، صبح سے بیٹھا ہوں، ایک بھی پکشی نہیں آیا اور نہ ہی بجلی آئی۔ تبھی بجلی کبھی اڑتی ہوئی بھورے کبے کی دکان پر آتی ہے۔ آپ بجلی جی، آپ کیا سیوا کروں آپ کی؟ آپ تو بہت دنوں بعد میری دکان پر آئی ہیں۔ چل چا، تو کیا میری سیوا کرے گا؟ کل میں تیرے بازو والی بادل حلوائی کی دکان پر گئی تھی، اس نے تو مجھے شدھ گھی کی مٹھائی کھلائی۔ ارے ارے، کیا بات کرتی ہیں آپ؟ وہ تو ایک نمبر کا بدماش ہے، وہ تو اپنی مٹھائی میں ملاوٹ کرتا ہے۔ رکیے، میں آپ کو ابھی اصلی مال کھلاتا ہوں۔ پھر بھورا کوا اپنی دکان سے ایک نان کھٹائی لے کر بجلی کبھی کو دیتا ہے۔ بجلی کبھی مزے مزے سے وہ بسکٹ کھاتی ہے اور بھورا کوا پیار بھری نگاہوں سے بجلی کو دیکھتا ہے۔ بھورے، بسکٹ تو بہت اچھے ہیں، چل بتا کتنے پیسے ہوئے؟ اور ہاں، ایک نہانے والا اچھا سا صابن بھی دے دے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بجلی؟ کیا میں اب تم سے پیسے لوں گا؟ ماں قسم، یہ میری دکان نہیں ہے، ورنہ یہ پوری دکان میں تجھے ہی دے دیتا۔ تبھی بھورا کوا الماری سے صابن نکال کر بجلی کبھی کو دے دیتا ہے۔ یہ لو بجلی، اس صابن سے نہاتے ہی تمہارا چہرہ ٹماٹر کی طرح لال ہو جائے گا۔ بجلی کبھی اور بھورا کوا دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ تبھی چیل چاچی وہاں آ جاتی ہے۔ بھورے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں نہیں چیل چاچی جی، کچھ نہیں، میں تو نہانے کا صابن دے رہا تھا۔ ارے گدھے، یہ نہانے کا نہیں، برتن دھونے کا صابن ہے۔ کیا بھورے، تم مجھے نہانے کی جگہ برتن دھونے کا صابن دے رہے تھے؟ پھر چیل چاچی صابن بدل کر بجلی کبھی کو نہانے کا صابن دیتی ہے۔ لے بجلی بیٹی، تو یہ صابن لے کر جا، جب میں دکان پر بیٹھی ہوں تب ہی آیا کر۔ ٹھیک ہے چاچی، میں چلتی ہوں۔ بیٹی، پیسے؟ لیکن چیل چاچی، یہ بھورا تو بول رہا تھا پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں بجلی، پیسے تو دینے ہوں گے، یہ دکان کیسے چلے گی؟ ٹھیک ہے چاچی، یہ لو پیسے۔ پھر بجلی کبھی چیل چاچی کو پیسے دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ چیل چاچی جھاڑو اٹھاتی ہے اور بھورے کبے کے پاس آتی ہے۔ کیوں بے بھورے، یہ دکان تیرے باپ کی ہے جو تم مفت میں مال بانٹ رہا ہے۔ مالکین، سب کو کہا، بس بجلی کو ہی تو دیتا ہوں، باقی سب سے تو میں پورے پیسے لیتا ہوں۔ اچھا، رک، تیری خبر لیتی ہوں میں۔ پھر چیل چاچی جھاڑو سے بھورے کبے کو مارتی ہے۔ دوسری طرف بادل حلوائی، جو بجلی کبے کو بہت پسند کرتا تھا۔ کہو بجلی، لے لیا صابن؟ ویسے تمہیں صابن کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو پہلے ہی پری جیسی ہو۔ اچھا، تمہیں راز کی بات بتاؤں، یہ پری رات کو 12 بجے الٹے پیروں والی چڑیل بن جاتی ہے۔ اچھا، یہ بات کتنی سچ ہے معلوم کرنے کے لیے مجھے 12 بجے تمہارے پاس آنا ہوگا۔ بولو بجلی، کب آ جاؤں؟ آج رات کو آ جاؤں؟ اچھا، پہلے میری پوری بات تو سن لو۔ چڑیل بننے کے بعد جو میرے آس پاس ہوتا ہے تو میں اسے کھا جاتی ہوں۔ تم مجھے ایک بار سیوا کا موقع تو دو، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ لیکن مجھے تم جیسے کالے کبے پسند نہیں، تمہارا آج کیا کبھی نمبر نہیں آئے گا۔ بجلی کبھی کے گھر بلبل موسی طوطے کا رشتہ بجلی کے لیے لے کر آتی ہے۔ تبھی مانو چڑیا بجلی کبھی کو تیار کر کے لے کے آتی ہے۔ ارے بجلی بیٹی، چلو اپنے ہونے والے پتی کو چائے دو۔ ہاں ہاں ماں، دیتی ہوں۔ پھر بجلی کبھی چائے طوطے اور اس کی ماں کو دیتی ہے۔ بہن جی، آپ کی بیٹی تو بہت اچھی چائے بناتی ہے۔ ہاں ہاں، میری بیٹی میں ڈھیر سارے گن ہیں۔ میرا بیٹا بھی بہت گنی ہے، یہ گانا بہت اچھا گاتا ہے۔ بیٹا، سبھی کو اپنا گانا تو سناؤ۔ ارے لینے دو نا ماں۔ چیکو طوطے کے بولتے ہی سبھی کی نظریں اس پر جم جاتی ہیں۔ بیٹا سنانا، کتنا اچھا گاتا ہے تو۔ اتھا اتھا ماں، سناتا ہوں۔ او تمک تلو لیو، او تمک تلو او لیو۔ تبھی بجلی کبھی ان سب کو اپنے گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ ماں، تمہیں میری شادی کرنے کے لیے یہی توتلا ملا تھا کیا؟ مجھے معاف کر دے بیٹی، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ توتلا ہے۔
मोटी बुलबुल ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। तभी बादल कौवा बिजली कवि के घर आता है। वो उन दोनों की बातें सुन लेता है। माँ जी बाहर आइए। आ रही हूँ बेटा, लगता है बादल कौवा आया है। मैं अभी उसके पैसे देकर आती हूँ। हाँ बेटा, ये ले तेरे पैसे। माँ जी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? एक तरफ बेटा कह रही हो और पैसे भी दे रही हो। तभी अंदर से बिजली कवि भी आती है। अच्छा तो काले कव्वे, क्या तू यहाँ पैसे नहीं हमसे हमारा हाल पूछने आया है? वो वो मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, सोचा माँ जी का हाल पूछ लूं। तू अपनी बकवास बंद कर, मुझे सब पता है यहाँ तू क्या करने आया है। बिजली, तू अंदर जा, मैं बात करती हूँ। फिर बिजली कवि घर के अंदर चली जाती है। बेटे, ये लो तुम्हारे पैसे। माँ जी, मुझे माफ करना, मैंने आपकी और आपकी बेटी की बातें सुन ली थी। वैसे माँ जी, आपको बिजली की शादी के लिए क्यों इतनी चिंता हो रही है? आपके आसपास भी तो कितने अच्छे अच्छे पक्षी हैं। फिर तो आपकी बेटी तो देखने में भी बहुत सुंदर है। आप आसपास उसके लिए रिश्ता क्यों नहीं ढूंढती? अगर आपकी बेटी आपके पास रहेगी तो आपको भी सुकून मिलेगा। आसपास कहाँ है बेटा, मुझे तो कोई भी नहीं दिखता। आसपास तो सभी लफंगे भरे पड़े हैं, इसलिए मजबूरी में तो मैं अपनी बेटी का ब्याह दूसरे जंगल के पक्षियों में देख रही हूँ। तभी बिजली कवि फिर से आ जाती है। माँ जी, ये अभी तक गया नहीं, निकालो इसे। बादल बेटा, बिजली की बात का पूरा ना बनाना, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। माँ जी, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? फिर तो ये मेरी अपनी है। अब तो चाहता है कि झाड़ू लेकर ही आऊं। ठीक है माँ जी, मैं चलता हूँ। मेरी बात पर गौर जरूर करना। अपने आसपास पक्षियों को जरूर देखना। देखिएगा, आपको बहुत अच्छा कौवा दिखाई देगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा वहाँ से चला जाता है। माँ, तू बहुत भोली है, इन पक्षियों की बातों को नहीं समझती। हाँ हाँ बेटी, जैसे तू तो बहुत समझदार है। माँ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, घर के अंदर चलो। फिर बिजली कवि अपनी माँ को लेकर घर में जाती है। माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं भूरे कौवे से शादी करना चाहती हूँ। क्या वो काला कलोटा भूरा कौवा तेरी मत मारी गई है क्या? तो कहाँ हूर जैसी, और वो रहा काला कौवा। दोबारा मेरे सामने उसका नाम मत लेना। ऐसा कहते हुए बिजली कवि की माँ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी बिजली कवि के फोन पर भूरे कौवे का फोन आता है। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। लगता है मूड खराब है। क्या माँ जी ने कहा कुछ? क्या तुम्हारी माँ हमारी शादी के लिए मान गई है? नहीं भूरे, माँ ने साफ ही इनकार कर दिया और दोबारा तुम्हारा नाम लेने के लिए सख्ती से मना किया है। देखो बिजली, तुम चिंता नहीं करो, अभी भी हमारे पास एक रास्ता है। हम दोनों भागकर दूसरे जंगल में चलते हैं। दूसरे जंगल में मेरा चाचा रहता है। कुछ दिन हम वहीं रहेंगे और फिर हम खुद का अपना घर बनाएंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? बताओ कब भागना है? मेरा बचपन का सपना है कि किसी के साथ भागकर शादी करूंगी। लगता है मेरा सपना पूरा होने वाला है। अरे वाह, फिर तो तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाएगा। लेकिन बिजली, हमें पैसों की जरूरत होगी। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? हाँ भूरे जी, है ना। माँ ने आज ही सब्जी लाने के लिए मुझे 50 रुपए दिए थे। वो पैसे मैंने संभाल कर रखे हुए हैं। बिजली, 50 रुपए में भला क्या होता है? मेरा कहने का मतलब है कि हमें लाख 2 लाख की जरूरत पड़ेगी। नहीं भूरे, उतने तो नहीं है। अच्छा बिजली, क्या कुछ जेवर है? हाँ, सेवर बहुत है, मेरे भी और मेरी माँ के भी। और चाबी माँ के घोंसले में ही रहती है। तो ठीक है, तुम चाबी चुरा लो और गहने लेकर आज रात मुझे बाहर मिलना। रात होते ही बिजली कवि अपनी माँ के कमरे में जाती है। वो अपनी माँ के घोंसले से चाबी लेती है और अलमारी में से सारे गहने लेकर बाहर चली जाती है। बिजली, जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना कोई ना कोई पक्षी हमें देख लेगा। ला, अब जल्दी से ये गहनों का बैग मुझे दे दे। नहीं भूरे, पहले यहाँ से भागते हैं, फिर ही मैं तुम्हें ये बैग दूंगी। अरे, जितना कह रहा हूँ उतना ही कर। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? फिर भूरा कौवा अपने पंखों से चाकू निकालता है। चल जल्दी से अब ये बैग मुझे दे, वरना ये चाकू तुम्हें मार दूंगा। भूरे, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम पर विश्वास किया था और तुम मुझे धोखा दे रहे थे।
बिजली कभी बातों ही बातों में भूरे कौवे से चाकू छीन लेती है और चाकू से भूरे कौवे की पूंछ काट देती है। भूरा कौवा जोर से चिल्लाता है जिससे सभी पक्षी उठ जाते हैं। तभी सभी पक्षी वहां आकर भूरे कौवे को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। मानो चिड़िया बिजली कौवे से कहती है, बिजली, आज तुम्हारी वजह से ये चोर पकड़ा गया है। क्या चोर? हाँ बिजली, कई महीनों से ये चोर हमारे ही जंगल में चोरी कर रहा था, लेकिन कोई भी पक्षी इसे पकड़ नहीं पाया। आज तुम्हारी वजह से ही ये चोर पकड़ा गया है। तभी बिजली कौवे की माँ भी वहाँ आ जाती है और वो अपनी बेटी को देखकर गले से लगा लेती है। बेटी, शुक्र है तू बच गई, तुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो बहुत डर गई थी। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी बेटी। बिजली कौवे कुछ भी नहीं बोलती और वो अपनी माँ के गले रखकर रोने लगती है। अगले दिन बिजली कौवे बादल कौवे की दुकान पर जाती है। बिजली, मैंने तुम्हें सच बताना चाहा, लेकिन तुम उस भूरे से सच्चा प्यार करती थी। अगर मैं तुम्हें कुछ भी बताता तो तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होता। तुम सच कह रहे हो बादल, भूरे के प्यार में मैं अंधी हो चुकी थी, जबकि वो तो बस मेरे पैसों से प्यार करता था। अगर मैं कल रात अपनी माँ के जेवर लेकर उस भूरे के साथ भाग गई होती तो आज मेरी हालत न जाने कैसी होती। बिजली, वो सब छोड़ो, बताओ आगे तुम क्या करने वाली हो? बादल, ये सब मैं नहीं जानती। जहाँ अब मेरी माँ चाहेगी मैं वहीं शादी करूँगी। फिर बिजली कौवे वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद बिजली कौवे की माँ अपनी बेटी की शादी बादल कौवे से करा देती है। अब वो दोनों खुशी खुशी अपनी मिठाई की दुकान चलाते और बिजली कौवे भी अब अपनी माँ की नजरों के सामने ही रहती। क्या हो गया है बिजली? सुबह सुबह क्या ढूंढ रही हो? किसी ने मेरा एक रसगुल्ला चुरा लिया है। तो फिर क्या हो गया? अगर किसी ने तुम्हारा एक रसगुल्ला चुरा लिया है तो? तुम्हें पता भी है कि मेरे लिए एक रसगुल्ले की कीमत कितनी है? मुझे अच्छे से याद है, मैंने 5 रसगुल्ले गिन कर रखे थे। अब बस 4 ही बचे हैं। बिजली, हो सकता है तुमने गलत गिन लिए हो। वैसे भी बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो जाती है। क्या बुढ़ापा? मेरी बस चोंच घिसी है, अकल नहीं। वैसे भी खाने पीने की चीजों का मुझे हिसाब बराबर याद रहता है। हाँ बिजली, ये बात ठीक है, खाने पीने के मामले में बहुत पक्की हो। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम्हारा रसगुल्ला किसने चुराया होगा? कहीं उस मोटी चोंच वाले ने तो मेरा रसगुल्ला नहीं चुरा लिया? नहीं नहीं बिजली, वो तोता ऐसा नहीं कर सकता। अरे, वो मोटी चोंच वाला कैसे नहीं हो सकता? तुम्हें याद है एक बार उसने मेरी खीर खा ली थी और इल्जाम बिल्ली पर लगा दिया था। लेकिन बिजली, वो तो बहुत पुरानी बात है। बात पुरानी है तो क्या हुआ? तुमने वो कहावत नहीं सुनी, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। लेकिन अब क्या होगा? होना क्या है, मैं पकड़ूंगी चोर को। ऐसा कहते हुए बिजली मौसी अपने घर से निकलती है और पड़ोस पे तोते के पास जाती है। अरे ओए मोटी चोंच वाले तोते, निकल बाहर। अरे क्या हो गया मौसी, क्यों चिल्ला रही हो? अच्छा, तो तुझे कुछ नहीं पता? हाँ, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हुआ क्या है? एक तो मेरे रसगुल्ले चुरा कर खाता है और ऊपर से अनजान बन रहा है। ये क्या बोल रही हो मौसी? भला मैं तुम्हारे रसगुल्ले क्यों खाऊंगा, तो भी चुरा कर? वो सब मैं नहीं जानती, ला मेरा रसगुल्ला। मैं सच कह रहा हूँ बिजली मौसी, मैंने आपके रसगुल्ले नहीं चुराए। और हाँ, इसका क्या सबूत है कि तुम्हारा रसगुल्ला मैंने चुराया है? सबूत ही तो नहीं है, अगर सबूत होता तो तू यहाँ न बैठा होता। अब तक तो तुझे मैं जेल में भिजवा देती। अरे खड़ूस मौसी, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरा नहीं, तेरा दिमाग खराब हो गया है मोटी चोंच वाले। जो तूने मुझसे पंगा लिया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर बिजली मौसी वहाँ से चली जाती है। मुझे इस कपी मौसी से बचकर रहना होगा, जिसके पीछे भी पड़ जाती है उसका जीना हराम कर देती है। क्या हुआ बिजली, मिला तुम्हारा रसगुल्ला? अरे गधे की पूंछ, अगर मिलता तो मैं यहाँ क्या खाली पंख खाती? वो मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। चुप कर जा, अगर चोर मुझे मिल जाता तो मैं उसके टांगे तोड़ देती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बहुत दिन हो गए खीर खाए हुए, आज तो बिल्ली मौसी ने भी दूध नहीं पिया। क्यों ना बचे हुए दूध की खीर बना लूं।
हाँ, ये बढ़िया रहेगा। ऐसा सोचते हुए बिजली का भी रसोई में जाकर खीर बनाने लगती है। वाह वाह, कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। कितने दिन हो गए थे खीर खाए हुए। रोज तो ये बिल्ली दूध पी जाती है। आज तो मैं मजे मजे से खीर खा कर रहूंगी। बिजली मौसी अपनी रसोई में खीर बना रही थी, तभी बाहर से एक ओए चंदू, जल्दी जल्दी काम खत्म कर और फिर बाजार से जाकर सब्जी लेकर आ। तेरी मालकिन को भोजन बनाना है। जी साहब, मैं जल्दी से काम खत्म करके अभी लेकर आता हूँ। चंदू चिड़े से कहकर बादल कव्वा वहां से चला जाता है। चंदू चिड़ा जल्दी जल्दी काम खत्म कर रहा होता है। जल्दी जल्दी सफाई करते हुए चंदू चिड़े के पंख से एक फूलदान नीचे गिरता है और टूट जाता है। आवाज सुनकर बिजली कभी और बादल कव्वा वहां आते हैं। हाय हाय, सत्यानाश हो तुम्हारा। चंदू, ये तुमने क्या किया? मैं वो मालकिन जल्दी जल्दी काम कर रहा था। न जाने कब मेरा पंख लगा और ये नीचे गिरकर टूट गया। तुझे पता भी है कि तूने क्या किया है? मेरे भाई ने कितने प्यार से दिया था ये फूलदान, और तूने इसे तोड़ दिया। मालकिन, मुझे माफ कर दे। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। चंदू, तुम्हें पता भी है ये फूलदान कितना महंगा है। तेरी 1 साल की तनख्वाह से भी ज्यादा है। माफ कर दीजिए मालिक, मैं इस फूलदान के पैसे लौटा दूंगा। मालिक, मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगा, बस मुझे कुछ समय दें। अच्छा अच्छा, चल जा और बाजार से सब्जी लेकर आ। चंदू चिड़ा टोकरी उठाता है और जंगल के बाजार से सब्जियां लेने चला जाता है। चंदू चिड़ा सारी सब्जियां खरीद लेता है। तभी वो देखता है कि बाजार के एक कोने में बूढ़ी फाख्ता बैठी है। वो एक मछली लिए उसे बेच रही होती है। मछली ले लो, ताजी ताजी मछली ले लो। वो बूढ़ी फाख्ता ऐसे आवाज लगा लगा कर मछली बेच रही होती है, लेकिन जंगल का कोई भी पक्षी उस बूढ़ी फाख्ता से मछली नहीं खरीदता। तभी चंदू चिड़ा वहां जाता है। बेटा, तुम ये मछली खरीद लो, कोई भी मुझसे ये मछली नहीं खरीद रहा। माँ जी, ये मछली कितने की है? बेटे, तुम्हें जितने भी पैसे देने हैं दे दो। वैसे भी ये मछली उस पास वाले जंगल की है। क्या माँ जी, ये उस श्रापित जंगल की मछली है? हाँ बेटा, मैं क्या करूं? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे अपने बेटे का इलाज करवाना है। बेटा, तू ये मछली मुझसे खरीद ले। लेकिन माँ जी, ये मछली तो उस जंगल की है। अगर मेरे मालिक और मालकिन को पता चल गया कि ये मछली उस श्रापित जंगल की है, तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। बेटे, ये तो तुझे और मुझे ही पता है कि ये मछली पास के जंगल की है। मेरी मदद करो बेटे। फिर चंदू चिड़े को बूढ़ी फाख्ता पर दया आ जाती है और वो पैसे देकर मछली खरीद लेता है और फिर कौवों के घर की ओर चला जाता है। आय हाय हाय, ये कैसी सड़ी हुई बदबू आ रही है। हाँ बिजली, बदबू तो मुझे भी आ रही है। ये जरूर निकम्मा आज कोई बेकार चीज लाया है। बता, क्या लाया है तू, जिससे इतनी सड़ी बदबू आ रही है? तभी चंदू चिड़ा मछली निकाल कर बाहर रखता है। अरे, ये कितनी गंदी बदबू आ रही है। ये सड़ी हुई मछली तुम्हें कहाँ से मिली? मालकिन जी, बाजार में एक बूढ़ी फाख्ता बैठी थी। उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी, बस मैंने उन पर दया की और मछली खरीद ली। बादल जी, लगता है ये सड़ी हुई मछली खिलाकर हमें मारना चाहता है। ओए चंदू, ये मछली ले जा और बाहर जाकर फेंक दे। कौवे की बात सुनकर चंदू चिड़ा वो मछली लेकर बाहर जाता है। अगर इस मछली को फेंकने की बजाय मैं अपने घर ले जाता हूँ, तो मानो बहुत खुश हो जाएगी। और वैसे भी हमारे घर में खाने के लिए भोजन तो है ही नहीं। ऐसा सोचते हुए चंदू चिड़ा वो मछली अपने घर ले जाता है। अरे वाह पति जी, ये क्या मछली। वैसे भी आज घर में कुछ भी पकाने को नहीं था। आज तो हम मछली ही पकाएंगे। मछली को देखकर मानो चिड़िया खुश हो जाती है और वो उसे लेकर रसोई में जाती है। जैसे ही चिड़िया मछली को काटती है तो उसके अंदर से एक चमक निकल रही होती है। अरे, ये क्या है इसमें, ये कैसे चमक रही है? तभी मानो चिड़िया देखती है, उसमें तो एक सोने का हंडा था। चंदू जी, जल्दी आइए, जरा देखिए ये मछली में से क्या निकला है। अरे क्या हुआ भाग्यवान? जरा देखिए ना, ये मछली में से क्या निकला है। अरे, ये तो सोने का अंडा है। ए ऊपर वाले, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारी सुन ली। चंदू जी, अब हम भी अमीर हो गए हैं, बहुत ज्यादा अमीर। फिर चंदू चिड़ा
वो सोने का अंडा उठाता है और उसे बेचने चला जाता है। सुनार तोता उस अंडे के बदले में चंदू चिड़े को ढेर सारे पैसे दे देता है। चंदू चिड़ा वो पैसे लेता है और घर लौट आता है। पति जी, ये तो ढेर सारे पैसे हैं। हाँ मानो, अब मैं कपों के पैसे भी लौटा कर आता हूँ। फिर मुझे उनके यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ऐसा कहते हुए चंदू चिड़ा कुछ पैसे लेता है और कपों के घर जाता है। चंदू, आज तो तू बहुत लेट हो गया है। तेरी मालकिन कब से इंतजार कर रही है। चल अब जा और जाकर काम कर। मालिक, मैंने आज से आपका काम छोड़ दिया है और ये रहे आपके फूलदान के पैसे। ये क्या, तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? बस ऊपर वाले का आशीर्वाद है। इतना कहकर चंदू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। इतने सारे पैसे देखकर बादल कौवा हैरान हो जाता है। आखिर इस नौकर के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? इसका तो पता लगाना ही होगा। चंदू जी, मैं सोच रही थी जहाँ से वो बूढ़ी फाख्ता मछली लेकर आई थी, आप भी वहाँ जाइए। हो सकता है आपको भी वहाँ मछली मिल जाए। हाँ मानो, तुम ठीक कह रही हो। मैं कल ही तालाब में जाकर देखूंगा। अगली सुबह चंदू चिड़ा जाता है और दूसरे जंगल के तालाब से मछली पकड़कर घर लेकर आता है। मानो चिड़िया जैसे ही मछली को काटती है, उसमें फिर से एक सोने का अंडा निकलता है। अरे देखिए, आज फिर हमें सोने का अंडा मिला है। मानो, अगर हमें रोज ऐसे सोने के अंडे मिलते रहे तो हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी हो जाएंगे। अब चंदू चिड़ा रोज ऐसा ही करता। वो दूसरे जंगल में तालाब पर जाता और मछली पकड़कर घर लेकर आता। देखते ही देखते वो दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं। अब तो उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा घर भी बनवा लिया था। अब तो जंगल के सभी पक्षी उनको देखकर बातें करने लगे थे। जरा देखा है तुमने, उस नौकर के पास कितना पैसा आ गया है। उसका घर तो जंगल के सभी पक्षियों से बहुत बड़ा है। अब तो वो हमारे जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन गए हैं। हाँ बिजली, मैं भी यही देख रहा हूँ। आखिर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? चंदू चिड़े को इतना अमीर देखकर उन कौवों से खुशी देखी नहीं जाती। अब वो दोनों पति पत्नी चंदू चिड़े पर नजर रखने लगते हैं। वो दोनों पति पत्नी खिड़की से देखते हैं कि मानो चिड़िया जब मछली काटती है तो उसमें से सोने का अंडा निकलता है। बादल जी, ये क्या, मछली में से सोने का अंडा? हाँ बिजली, ये तो सच में सोने का अंडा है। अब हमें चंदू पर नजर रखनी होगी। वो ये मछली कहाँ से लाता है? अगली सुबह जब चंदू चिड़ा दूसरे जंगल के तालाब से मछली पकड़ने जाता है तो वो कौवे भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। वो एक पेड़ के पीछे छुपकर सब देख रहे होते हैं। पति जी, यही है वो जादुई तालाब जहाँ से चंदू मछली पकड़ कर जाता है। जब चंदू चिड़ा मछली पकड़कर चला जाता है तो वो कौवे उस तालाब के पास आते हैं। फिर वो पति पत्नी भी एक जाल तालाब में फेंकते हैं। उस जाल में एक मछली फंस जाती है। सुनिए ना, क्यों ना हम इस तालाब की सारी मछलियाँ निकाल ले, फिर हम जंगल के सबसे अमीर कौवे बन जाएंगे। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी तालाब में घुस जाते हैं और बाल्टियों की मदद से तालाब को खाली करने लगते हैं। देखते ही देखते तालाब का पानी खत्म हो जाता है। बादल जी, तालाब का सारा पानी तो खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ एक भी मछली नहीं है। ये मछलियाँ ना जाने कहाँ चली गई। हाँ बिजली, मैं भी यही देख रहा हूँ। आखिर इस तालाब की मछलियाँ कहाँ चली गई? पति जी, ये क्या हो रहा है? हम ऐसे इस तालाब में कैसे घुसते जा रहे हैं? ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बचाओ, कोई हमें बचाओ, तुम कुछ करो ना। बिजली, मैं क्या करूं? मैं तो खुद अंदर धंसा जा रहा हूँ। मुझे लगता है ये हमारे लालच का अंजाम है। तुम्हें तो पता है ये जंगल श्रापित है। ऐसे वो कौवे रोते रहते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने वाला नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता वो उस दलदल में धंस जाते हैं। जादूगरनी चिड़िया सभी पक्षियों से दूर घने काले जंगल में रहती थी। जादूगरनी चिड़िया का एक ही बेटा था जो बहुत जिद्दी था। जिस चीज की भी वो इच्छा करता था, जादूगरनी चिड़िया उसे उसी समय बना देती थी। जादूगरनी चिड़िया बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वो हमेशा सभी पक्षियों की मदद करती थी। एक दिन जादूगरनी चिड़िया अपने घोंसले में सो रही थी, तभी उसका बेटा बबलू आता है। वो अपनी माँ की जादुई छड़ी देखकर उठा लेता है। आज तो मैं भी जादू करूंगा।
मम्मा की छड़ी से जंगल में जाता हूँ। बबलू चिड़ा वो छड़ी उठाता है और जंगल की ओर निकल जाता है। वो एक बागीचे में जाता है जहाँ पेड़ के नीचे गाय घास खा रही थी। मम्मा भी जादू करती हैं। आज मैं भी इस छड़ी से जादू करके देखता हूँ। ये गाय डर जाएगी। फिर बबलू चिड़ा छड़ी की ताकत देखने के लिए सीधा गाय पर जादू करता है। छड़ी से एक जादुई बिजली निकलती है जिससे वो गाय वहीं मर जाती है। तभी वहाँ गाय का मालिक तोता आ जाता है। चीकू तोता अपनी गाय को इस हालत में देखकर रोने लगता है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? आह, मैं तो पहले ही बहुत गरीब हूँ। इसी गाय के दूध से ही तो मेरा परिवार चलता था। आह, तभी बबलू चिड़ा वहाँ आता है। तोते अंकल, मुझे माफ कर दो। मैं तो बस खेल रहा था। मेरे कारण ही आपकी गाय मर गई। बेटे, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे पास तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तोते अंकल, आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको अपनी माँ से मिलवाता हूँ। फिर बबलू चिड़ा तोते को लेकर अपनी माँ के पास जाता है। बबलू, आ गए तुम? तो ये छड़ी तुम लेकर गए थे? माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने इस जादुई छड़ी से तोते की गाय पर जादू किया और वो मर गई। माँ, आप इन्हें दूसरी गाय दे दें। नहीं, मुझे मेरी वही गाय चाहिए। मुझे अपनी गाय से बहुत प्यार था। मुझे दूसरी गाय नहीं चाहिए। ये सब सुनकर जादूगरनी चिड़िया बोलती है, मैं उसे जिंदा तो नहीं कर सकती, लेकिन उसके बदले एक और गाय दे सकती हूँ। नहीं नहीं, मुझे वही गाय चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक सोने की गाय देती हूँ। चिड़िया की ये बात सुनकर तोता खुश हो जाता है। ठीक है चिड़िया, मैं वो गाय ले लेता हूँ। फिर चिड़िया जादू करती है और वहाँ एक सोने की गाय आ जाती है। तोता बहुत खुश हो जाता है और वो उस गाय को लेकर अपने घर चला जाता है। वो गाय भी दूसरी गाय की तरह घास ही खाती थी। जंगल के सभी पक्षी तोते की गाय को देख देख कर जाते हैं। पड़ोसन कव्वे तो उस गाय को देखकर चल रहे थे। बादल जी, लगता है इस मोटी चोंच वाले ने गाय पर सोने का रंग करवाया है। नहीं नहीं बिजली, मुझे तो लगता है ये सच में सोने की गाय है। पति जी, कैसी सोने की गाय जो घास खाती है? लगता है ये तोता सभी पक्षियों को उल्लू बना रहा है। शाम हो जाती है। तोता अपनी गाय का दूध निकालता है। जब तोते के पड़ोसी कव्वे ये देखते हैं तो वो कहते हैं, बादल जी, ये कोई सोने की गाय नहीं, देखो इसका दूध भी सफेद है। तोता वो दूध की बाल्टी उठाकर अपने घर में जाकर रख देता है। दूध रखकर वो काम करने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब तोता आकर देखता है तो वो दूध सोने में बदल चुका था। अरे वाह, मेरी गाय तो सोने का दूध देती है। इस गाय की तो अब अच्छे से रक्षा करनी होगी। फिर गाय गोबर करती है जिसे देखकर पड़ोसी कव्वे कहते हैं, देखो ना बिजली, ये तो दूसरी गाय की तरह गोबर भी करती है। ये मोटी चोंच वाला सबको पागल बना रहा है। तोता वो गोबर उठाता है और घर के अंदर ले जाता है। तभी गोबर सोने में बदल जाता है। अब तो तोता बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, मजा ही आ गया। मेरी गाय तो सोने का दूध देती है और सोने का गोबर देती है। अब तोता जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाता है। वो किसी को कुछ भी नहीं बताता। तोते की गाय गर्भवती हो जाती है और वो एक बच्चा देती है। तोते की गाय का बच्चा भी सोने का था। ये देखकर कौवा कबूतर से कहता है, देखो देखो कबूतर यार, इस तोते ने तो बच्चे पर भी सोने का रंग करवा लिया है। लेकिन कुछ भी हो बादल, जब से ये तोता सोने की गाय लेकर आया है, बहुत अमीर होता जा रहा है। फिर बादल कौवा मन ही मन में सोचता है, वैसे कबूतर ठीक ही कह रहा है, कोई ना कोई रहस्य तो जरूर होगा। रात हो जाती है। बादल कौवा और बिजली कभी अपने घर से निकलते हैं और वो तोते की गाय को चुराकर वहाँ से ले जाते हैं। बादल कौवा गाय को चारा डालता है। गाय चारा खा जाती है। चारा खाते ही गाय गोबर करती है। ये क्या बादल जी, ये गाय तो गोबर कर रही है। तभी तोता भी वहाँ आ जाता है। अरे कव्वो, तुमने मेरी गाय चुराई, मुझे मेरी गाय वापस दो।
हम नहीं देंगे, जो करना है कर लो। तभी तोता कप्पे से लड़ने लगता है। शोर की आवाज सुनकर बाकी पक्षी भी वहां आ जाते हैं और वो सब तोते की गाय उसे वापस दिला देते हैं। तोता अपनी गाय लेकर चला जाता है। तभी वहां खड़े सभी पक्षी देखते हैं गाय ने जो गोबर किया था वो सोने का बन जाता है। ये देखकर सभी पक्षी बहुत हैरान होते हैं। देखो बादल जी, शेष गोबर तो सोने का बन गया है, तभी तो वो मोटी चोंच वाला इतना अमीर हो गया है। अगले दिन कुछ और पक्षी उस गाय को चुराने आते हैं और वो पक्षी उस गाय को चुरा कर ले जाते हैं। तभी उसका बछड़ा वहीं रह जाता है। गाय का बच्चा बहुत रोता है। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू मोती बन जाते हैं। ये देखकर तोता खुश हो जाता है, साथ में उसे दुख भी होता है। ये बच्चा अपनी माँ के लिए रो रहा है, ये बेचारा अपनी माँ के लिए तरस रहा है। फिर तोता पूरे जंगल पे बछड़े की माँ को ढूंढने निकलता है, लेकिन उसे गाय कहीं भी नहीं मिलती। तभी गाय का बच्चा खुद चलने लगता है। तोता भी उसके पीछे पीछे उड़ता है। वो बच्चा उस जगह पहुंच जाता है जहां उसकी माँ थी। अब तोता गाय और उसके बच्चे को लेकर जादूगरनी चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मैं इस गाय और बच्चे को पाल तो लूंगा, लेकिन जंगल के पक्षी इसे चुरा लेते हैं, जो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि ये बच्चा और गाय आप रख लीजिए। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। मैं दूसरी गाय खरीद लूंगा, लेकिन मैं एक बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं कर सकता। तोते, तुम बहुत अच्छे पक्षी हो, तुम में जरा भी लालच नहीं है। मुझे लगा तुम लालची हो और इसे कभी वापस नहीं करोगे। ठीक कहा।